Okay, so let's see where is our S block. This first column, guys, if you see, this is written alkaline metals group 1 and this is alkaline earth metals group 2. तो इन दोनों को मिला के if you take this entire two blocks, that becomes our S block. Okay, that is our S block. What is our P block? So if you see over here, there is boron. बोरॉन से लेके हीलियम और हीलियम से पूरा नीचे तक एंड देन फ्रॉम बोरॉन आल्सो इफ यू गेट दिस एंटायर थिंग ओवर हियर, ये जो पूरा है ये है अपना पी ब्लॉक. ठीक है, कैन यू काउंट हाउ मेनी columns are there in the P block? So this is 1 2 3 4 5 and 6, so there are 6 columns in the P block. Okay, then we are looking at the D block. So if you see this entire thing over here, from here, this entire thing, this is our D block. Okay, this is our D block. और इसमें कितने कॉलम्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So it means that there are 10 columns which are there in the D block. और फिर फाइनली यहाँ पे ये देखो, ये नीचे दो कॉलम्स है, these are two rows in fact, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो दो रोज हैं इनको बोलते हैं F block. We call this as F block. So this is S block, this is P block over here, this is D block over here in between, and here we have the F block. Okay, now so we have understood what the blocks are. S, P, D and F blocks कहाँ कहाँ पे हैं periodic table में, ये हमको समझ में आ गया है. ठीक है, so now we are moving ahead. ठीक है, let's see some very interesting questions I have for you. तो पहला ये question है कि maximum number of electrons in any shell of an atom कितने हो सकते हैं. ठीक है, that's the first question. अब for example जब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन has atomic number 1 और उसमें first electron goes in the first shell. फिर when we see helium, it has atomic number 2. 2 electrons go in the first shell, second shell is completely empty. जब लिथियम पे जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है. तो इसका मतलब जो फर्स्ट शेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पा रहा है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पा रहा है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इफ यू हैव K, L, M and N shells like this and so on, so the first shell which is the K shell can hold a maximum of 2 electrons. ठीक है, इसके बाद we are looking at the next one. In the next one if you see जो second shell है, याद रखो, it can hold a maximum of 8 electrons. Third shell can hold a maximum of 18 and then 32 and then so on. अब एक फॉर्मूला है जिससे we will be able to find the number of electrons which they are holding, the maximum number of electrons which any shell can hold. उसका फॉर्मूला है जिससे अपन ये वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो है 2n स्क्वायर. n क्या है? n is called the shell number. n is known as the shell number. तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो अगर अपने को निकालना है कि फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इट्स सिंपल, व्हाट यू डू इज 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into n स्क्वायर, ये n सिर्फ n का स्क्वायर करना है, तो 2 into n का स्क्वायर, तो 2 into n का स्क्वायर करोगे मतलब क्या आ जाएगा? 2. सो इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2. सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले का क्या सिचुएशन है? यहाँ पे इफ यू फाइंड एंड यू डू इट, इट विल बी 2 into 2 स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 8. इसका मतलब सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. थर्ड वाले के लिए इफ यू डू द सेम थिंग, ट्राई इट आउट, 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 2 is 18 and that's why we have this numbers over here like this. 4 के लिए करोगे तो क्या आएगा? 32. So that's how we can find the maximum number of electrons which any shell in an atom can hold. ठीक है, याद रहेगा ये. तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? 2n square. That was the formula. Moving ahead. Next is अगर ऐसा सिचुएशन है, so what is the electronic configuration of potassium? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर उसका एटॉमिक नंबर 19 है? तो if it is 19 then what will be its electronic configuration? तो अब देखो कैसे करेंगे. 2 8 18 32 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होल्ड कर सकते हैं, ये उसकी क्वांटिटी है 2 8 18 32. और अपने पास 19 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल करने हैं, मतलब फर्स्ट में अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं,
तो अभी अपने पास 19 में से 2 चलेगा, मतलब 17 बचे। अच्छा 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम ओवर हियर, सो 10 आर गॉन आउट ऑफ 19, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 9 आर लेफ्ट। तो आइडियली अब अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो कैपेसिटी थर्ड शेल की 18 है, तो इसलिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आराम से होल्ड कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई शुड कॉल इट एज 289, एंड दैट आई शुड से इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम। ये कहां से आया, ये आंसर कहां से आया अपने को, 2n² रूल फॉलो करो तो उससे ये आंसर आता है। बट गाइस इंटरेस्टिंगली ये रॉन्ग है। अब अपन ने तो करेक्टली फॉलो किया था 2n² वाला रूल, तो फिर ये रॉन्ग कैसे हो गया? ये रॉन्ग इसलिए हो गया, और मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। पोटेशियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2881। 28 ये तो ठीक है, बट फिर थर्ड वाले शेल में उन्होंने 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाले, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले, 288, और फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाला है। That's what they're saying. So it is 2881. That's the electronic configuration for potassium, and this is the right one. अब इसका जो explanation है, that is said to be in the octet rule. That is said to be in the octet rule. अब let's understand octet rule क्या है, इसका मतलब क्या है octet rule का? Octet rule means that you are going to have this maximum number of electrons which any shell can hold is 8, ऐसा octet rule बोलता है। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी शेल कैन होल्ड वाज 2n², बट ऑक्टेट रूल के हिसाब से व्हाट इज इट, ऑक्टेट रूल बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑक्टेट रूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी शेल कैन होल्ड इज 8 एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्पेलिंग रॉन्ग है, 1 सेकेंड, सो एक्सेप्ट व्हेन यू हैव द फर्स्ट शेल जिसमें कितने आ सकते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट शेल जिसमें यू कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो छोड़ के ऑक्टेट रूल के हिसाब से बाकी सब शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 8। ओके, ये ऐसा लग रहा है पोटेशियम को देख के कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पे ये 2n² वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, इमेजिन करो अगर मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 20 है करेक्ट, सो वी विल राइट इट एज 2,8, अगर 2n² के हिसाब से लिखो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 10 फिल हो गए, थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं क्या, 2n² के अकॉर्डिंग टू बैठ सकते हैं, सो आई शुड बी राइटिंग 2, 8, 10, ऐसा लिखना चाहिए। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से होना चाहिए, अपना 2n² रूल के हिसाब से होना चाहिए, so that is why it should be 2n², तो ये करेक्ट होना चाहिए, but we know that this is not correct, ये wrong है। तो फिर let's look at what should be according to octet rule। ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर मैंने लिखा कैल्शियम का तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में भी 8, थर्ड शेल में भी 8, इससे ज्यादा भर नहीं सकते ऑक्टेट के हिसाब से। सो दिस इज 10 + 8 दैट्स 18, बट 20 में अभी भी 2 बाकी हैं, तो आई विल फिल 2 मोर इन द फोर्थ शेल। अब क्या हो गया देखो, ये जो है इसको अपन ने किसके हिसाब से फिल किया, ऑक्टेट रूल के हिसाब से फिल किया। वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये स्लाइड से ये समझ में आ रहा है कि ऑक्टेट रूल जो है दैट इज अ लिटिल बेटर एज कंपैरिजन टू 2n², क्योंकि 2n² पोटेशियम और कैल्शियम के लिए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पा रहा, इट्स नॉट follow. So does it follow the 2n² formula? Does potassium and calcium का electronic configuration follow 2n² formula? No, it doesn't. Okay. Now, what is the reason? We have understood it is the octet rule. और octet rule क्या बोलता है? That the 2n² formula tells us maximum number of electrons any shell can hold, but octet rule is saying that each atom will try to achieve 8 electrons in the outermost shell. Which one is correct becomes a question mark. Which one is correct becomes a question mark. Let's take one more example and this will make things maybe a little more confusing or maybe a little more clear. Okay, so the next question is of scandium. अपन ने पोटेशियम का डिस्कशन किया जो 19 पे था, अपन ने कैल्शियम का डिस्कशन किया जो 20 पे था, अभी अपन स्कैंडियम का डिस्कशन करते हैं और इसमें तो और भी मजा आएगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अ लॉट। स्कैंडियम 21 है। अच्छा चलो अपन 2n² से पहले तो स्टार्ट करते हैं। 2n² का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन स्कैंडियम का लिखेंगे तो कैसे लिखना चाहिए, हाउ शुड वी राइट इट? सो याद करो 2, 8, 18,
32 एंड सो ऑन, इस टाइप से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अपने को कितने भरना है 21, तो फर्स्ट वाले में 2 भर सकते हैं, सेकंड वाले में 8 हो गया, 10 हो गई है। 10 के बाद नेक्स्ट वाले में कितना आ सकता है, अपने को कितने भरने 21, तो 10 भर दिया, मतलब 11 फिल करने अपने को, तो 2 8 11 ऐसा फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो 11 तो होल्ड ही कर सकता है, 11 इट कैन डेफिनेटली होल्ड। तो 2n स्क्वायर के हिसाब से ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, किसका, स्कैंडियम का। अच्छा, बट अपने को मालूम है कि ये पोटेशियम और कैल्शियम के टाइम पे भी रॉन्ग आंसर दे रहा था, तो देयर इज अ चांस दैट इट विल बी रॉन्ग ओवर हियर एंड इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा, ऑक्टेट। ऑक्टेट के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए इसका, कैन यू थिंक एंड टेल मी। ऑक्टेट के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, जरा सोचो, पॉज करके वीडियो और देखो कि क्या आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे वी आर हैविंग 2 8 8, कितने हो गए 18 हो गए, करेक्ट, क्योंकि इसमें तो और नहीं भरने चाहिए, ऑक्टेट के हिसाब से 8 भर गया, तो दैट्स द मैक्सिमम इट कैन होल्ड। बचे कितने, 18 के बाद 3 और बचे, तो इसका मतलब ऑक्टेट के हिसाब से यू मस्ट गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, करेक्ट। और ये सेम तरीका अपन ने यूज किया था पोटेशियम के लिए, ये सेम तरीका कैल्शियम के लिए, तो 2883 आंसर आ रहा है स्कैंडियम का। इंटरेस्टिंगली ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर करेक्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कुछ तो मैजिकल एलिमेंट आ रहा है जहां पे वी आर नॉट एबल टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईदर बाय यूजिंग द 2n स्क्वायर रूल और बाय यूजिंग द ऑक्टेट रूल। तो अब क्या करें, इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज 2892। अब ना तो ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ना ये 2n स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है, ये कुछ अलग सा ही रूल फॉलो कर रहा है। इट इज फॉलोइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट रूल। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। एंड ये 2 8 देखो पोटेशियम का कैसे था, 2 8 8 1 था, कैल्शियम का 2 8 8 2 था। तो स्कैंडियम जो उसके बाद वाला है, आइडियली एक्सपेक्टेड है कि अभी तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा है, फिर नेक्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा है, तो एक्सपेक्टेड था कि उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। बट सी व्हाट दे डिड, यहाँ पे फिल करने के बाद दे डिड नॉट फिल द इलेक्ट्रॉन हियर, दे हैव फिल्ड द इलेक्ट्रॉन इन द प्रीवियस शेल। प्रीवियस शेल पीछे जाके दे हैव फिल्ड वन इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव गॉट 2892। So please understand that यहाँ पे there is a problem which we are not understanding कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, और उसका अपने को रीजन निकालना है, उसका अपने को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं और आज अपन क्या क्या सोल्यूशंस उसके लेने वाले हैं, ये सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो 2n स्क्वायर का पहले तो फॉर्मूला आया कहाँ से, वी शुड नो दैट, तो वील डिस्कस दैट। Why doesn't potassium and calcium follow 2n square, है ना, पोटेशियम और कैल्शियम 2n स्क्वायर फॉलो नहीं कर रहे थे, बट ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो करते हैं। अच्छा, स्कैंडियम जो है फॉलोज नीदर ऑक्टेट रूल नॉट 2n स्क्वायर। अभी अपन ने देखा स्कैंडियम का जिसका 21 एटॉमिक नंबर है, तो वो तो ऑक्टेट रूल भी फॉलो नहीं करता और 2n स्क्वायर भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों भी नहीं कर रहा। अच्छा, शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल वैसा क्यों है, व्हाई इज इट लाइक दैट, वो इस टाइप का कुछ तो शेप अपन ने देखा था ना पीरियोडिक टेबल का, इट इज लाइक दिस शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने की क्या जरूरत थी, अगर मेरे को ये शेप बनाने दिया होता पीरियोडिक टेबल का, तो आई वुड हैव मेड द शेप वेरी सिंपली लाइक दिस, ऐसा कर देते थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे सब लिख देते थे। या फिर अगर समझो बहुत ही कुछ क्रिएटिव करना है, तो कुछ ऐसा कर सकते थे जहां पे यू आर मेकिंग अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में इस टाइप से ये बना देते थे कॉलम, और इस टाइप से रो बना देते थे और उसमें लिख देते थे, अगर बहुत ही क्रिएटिव करना होता तो। बट ये कुछ अलग ही शेप है पीरियोडिक टेबल का, और ये ऐसा क्यों है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, हाउ डू वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन डिफरेंट बॉक्सेस, अभी वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो उनको उन्हीं जगहों पे क्यों रखा, जैसे यहाँ पे बोरॉन क्यों रखा, यहाँ पे हीलियम क्यों रखा, तो why is that element placed in that particular box, we will be able to understand that. And very interesting, if new element will be discovered, then where should this element be placed in the periodic table। मतलब ध्यान में रखो, अभी देखो अपने पीरियोडिक टेबल, इफ आई शो यू, अपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हो गए हैं, तो मतलब यहां तक तो अपना पीरियोडिक टेबल भर गया है। ठीक है, अब अगर 119 आएगा या 120 आएगा
या 121 वाला एलिमेंट आएगा तो उनको कहाँ रखेंगे, वेयर विल यू कीप इट? सो दैट्स अनदर क्वेश्चन जो अपन आज आंसर कर पाएंगे यूजिंग दिस वीडियो. इफ यू सी दिस वीडियो थ्रू आउट, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द एंड. ठीक है. सो